Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स। इस कैपिटल गेन टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे इनकम के हेड्स। हेड्स ऑफ इनकम, देयर आर 5 heads of income as per income tax act. First, income from salary. Second, income from house property. Third, profit and gain of business. Fourth, capital gains. Fifth, income from other sources. यानी कोई भी पर्सन या एसएससी पूरे साल के दरमियान इंडिया में जो भी अर्निंग करता है, इनकम अर्न करता है, वो 5 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे बोला जाता है 5 heads ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स हेड, जिसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कैपिटल असेट्स का मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स। Capital assets means any kind of property held by SSC, whether or not connected with his business and profession. The definition states very clear that capital assets includes all kind of property, movable, immovable, tangible, intangible, fixed or circulating. Example like shares, stock, jewelry, house, land, etc. After completing meaning of capital assets, now we have a types of capital assets, जिसके अंदर फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल assets, meaning capital assets which is held by an SSC for not more than 36 months on the date of transfer is called short term capital assets। यानी कोई भी एसेट्स ने 36 महीने से कम समय अपने पास रखी हुई भी कोई भी कैपिटल असेट्स हो तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कहा जाता है। सच प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस प्रकार की कोई भी शॉर्ट टर्म असेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट अराइज होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। नाउ सेकेंड टाइप्स, लॉन्ग टर्म capital assets. Capital assets which is held by an SSC for more than 36 months on the date of transfer is called long term capital assets। यानी 36 महीने से ज़्यादा समय तक अपने पास रखी हुई कोई भी असेट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कहा जाता है। सच प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस प्रकार की कोई भी लॉन्ग टर्म असेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट अराइज होता है उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, we are taking exception of capital assets। capital assets के कुछ अपवादित पॉइंट, in case of equity shares, preference shares, various securities listed in recognized stock exchange in India, units of unit trust of India and mutual funds will be considered
as short-term capital assets if they are held for not more than 12 months and for unlisted shares, land and building are held not more than 24 months. Now we are taking meaning of capital gain. Any profit or gain arising from the transfer or sale of any capital assets in previous year is treated as capital gain. Previous year gain is taxable under the head of capital gain. चलो नाउ कैपिटल गेन को समझने के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं. एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेन. फ्रॉम द फॉलोइंग particular of Sri Nihar, calculate the taxable income under the head of capital gain for the assessment year 2019-20. He sold self-residential house for rupees 33,14,960 on 1/8/2018 and paid rupees 21,190 for brokerage expenses. This house was purchased for rupees 1,50,000 in year 98-99. The fair value of this house on 1/4/2001 was rupees 8 lakh. This was the only house owned by him. यानी श्री निहारपुरी एक ऐसे सी है जिन्होंने एक सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है जिसकी परचेज प्राइस 98-99 की 1,50,000 है एंड 2001 की मार्केट वैल्यू रुपीज 8 lakhs है. He has made additional construction of rupees 1,50,000 in the year 2008-9. On 31st December 2018, he has purchased a new residential house for rupees 8,50,000. The related index number for the calculation of long-term capital assets are as under. Index for the year 2001 to 100, 2008-9, 137, 2018-19, 280. Now we are taking calculation of taxable long-term capital gain of Sri Nihar. Left side previous year 2018-19 and assessment year 2019-20. कैलकुलेशन के लिए अब टेबल बनाएंगे जिसमें दो कॉलम्स लेंगे हम. पर्टिकुलर रुपीस जिसके अंदर फर्स्ट कैलकुलेशन सेल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउस रुपीज 33,14,960 लेस सेल्स एक्सपेंडिचर या फिर ब्रोकरेज 21,190. After deducting sales expenditure, we will receive net sales rupees 32,93,770. अब जिसमें से डिडक्ट करेंगे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ असेट्स. In 98-99 cost of purchase rupees 1,50,000 है and fair market price on 1/4/2001 rupees 8 lakhs. Whichever is higher is taken for working. रूल्स ये है कि आपके पास असेट्स का परचेज प्राइस हो और 1/4/2001 की मार्केट प्राइस हो. दोनों में से जो हायर वैल्यू हो उसे वर्किंग में हमें पिक करना है जिसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. कॉस्ट प्राइस इनटू
index of inflation year of transfer upon index of inflation year of purchase equal to 8 lakh rupees into 280 index upon 100 equal to 22 lakh 40,000. Now we are continuing calculation of taxable long term capital gain of Shri Nihar, जिसके अंदर आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ परचेज लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ असेट्स, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिडक्ट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन index of year of improvement cost equal to 1,50,000 improvement cost into 280 upon 137 equal to rupees 3,06,569. Now net sales में से index cost of purchase and index cost of improvement deduct करने के बाद we will receive long term capital gain ₹7,47,201। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स बचाने के लिए एसएससी द्वारा इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, जिसका डिडक्शन है डिडक्शन एज पर अंडर सेक्शन 54 हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इन हाउस प्रॉपर्टी ₹8,50,000। यहाँ एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स बचाने के लिए एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है 8,50,000, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज़्यादा है। सो यहाँ एसएससी द्वारा जो भी लॉन्ग टर्म गेन अर्निंग किया गया है वो टोटल गेन एग्जम्प्टेड हो जाएगा। सो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी 0 या नील कह सकते हैं। Now we are taking second example of capital gain. Srimit has provided the following details for previous year 2018-19. Compute taxable capital gain for the assessment year 2019-20. श्रीमित का हमें 2018-9 का डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके ऊपर से हमें उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए एक टेबल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फर्स्ट रेसिडेंशियल हाउस, सेल डेट है 2019 की, परचेज डेट है 95, यानी दोनों के बीच का गैप 36 महीने से ज़्यादा है, इसे हम कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। सेकेंड RIR इक्विटी शेयर्स, जिसके अंदर गैप 12 मंथ से ज़्यादा है, जिसे हम कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। थर्ड पर्सनल मोटर कार, इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैपिटल असेट्स, सो पर्सनल मोटर कार का कोई भी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। फोर्थ ज्वेलरी, जिसकी सेल डेट है 2019 और परचेज डेट है 1/11/16, जिसका गैप 36 महीने से कम है, जिसके कारण इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के तौर पे कैलकुलेशन करेंगे। नाउ एग्जांपल 2 कंटिन्यू हो रहा है इन पैराग्राफ। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस वाज ₹35 lakh as on 1/4/2001. The share of the company were subject to security transaction tax. After that we have a table for index, जिसके अंदर 2001, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16 and 18, 19 के index available है। After that we have a small working note. Here jewelry is sell within 36-month period of its purchase, so it is considered as short-term capital assets and gain on it consider as short-term capital gain. अब हम
कैपिटल गेन का कैलकुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ श्री मीत. लेफ्ट साइड प्रीवियस ईयर 2018-19, assessment year 2019-20. For calculation we have a table in two columns, particular rupees. First assets, इसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी. सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, प्राइस रुपीज 90 lakhs. डिडक्ट लेस सेल्स एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर rupees 25,000. After deducting transfer expenditure, we will receive net sales 89,75,000, जिसके अंदर से हम डिडक्ट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ असेट्स. इंडेक्स कॉस्ट के लिए सबसे पहले 110.95 को कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस रुपीज 3 lakhs गिवन है, and fair market price on 1 for 2001 rupees 35 lakhs available है. As per rules, whichever is higher is taken for working. अब हायर प्राइस को वर्किंग में लेने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन ईयर ऑफ परचेज equal to 35 lakhs into 280 upon 100 equal to rupees 98 lakh. अब नेट सेल्स के सामने जो इंडेक्स कॉस्ट आई उसकी वैल्यू ज्यादा है, सो वी विल रिसीव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आंसर इन माइनस 8,25,000 रुपीज. कैपिटल गेन एग्जाम्पल को अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ श्री मीत. टेबल के अंदर सेकेंड आइटम का कैलकुलेशन होगा RIL इक्विटी सेल्स. सेकेंड, सेल ऑफ RIL इक्विटी सेल्स रुपीज 10 lakhs लेस सेल्स एक्सपेंडिचर या फिर ट्रांसफर एक्सपेंडिचर रुपीज 1,000. आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स एक्सपेंडिचर नेट सेल्स रिसीव रुपीज 9,99,000, जिसमें से अब हम डिडक्ट करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ RIL इक्विटी सेल्स, जिसके लिए 1,9,2005 का कॉस्ट ऑफ परचेज रुपीज 2,80,800 अवेलेबल है, जिसको इंडेक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, cost price into index of inflation year of transfer upon index of inflation year of purchase equal to 2,80,800 into 280 upon 117 equal to rupees 6,72,000. नेट सेल्स में से इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद वी विल रिसीव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रुपीज 3,27,000. आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड आइटम कैलकुलेशन, थर्ड आइटम है पर्सनल मोटर कार. इट इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल असेट्स, सो नो कैपिटल गेन कैलकुलेट ऑन इट. आफ्टर नोटिंग पर्सनल कार, चौथा कैलकुलेशन है ज्वेलरी का, जिसके लिए वर्किंग नोट समझेंगे. हियर सेल ऑफ ज्वेलरी इज विद इन 36 month पीरियड ऑफ इट्स परचेज, सो इट इज कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स एंड गेन ऑन इट कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. यहाँ ज्वेलरी को हमने 36 महीने से कम समय में सेल की है, जिसके कारण उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जिसके अंदर कैलकुलेशन के समय इंडेक्स कॉस्ट अप्लाई नहीं होगी. अब कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ श्री मीत, जिसके लिए एक टेबल के अंदर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिसमें दो कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर रुपीज. Now item fourth, sales of jewelry.
₹39 lakhs लेस सेल्स एक्सपेंस या फिर ट्रांसफर एक्सपेंस ₹30,000. आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस नेट सेल्स रिसीव 38,70,000. इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ज्वेलरी ₹31 lakh. After deducting cost of purchase, will receive short-term capital gain ₹7,70,000. After completing all calculation, now we are taking calculation of taxable long-term and short-term capital gain of Shri Meet. जिसके लिए एक टेबल में प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जिसमें 2 कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर रुपीज. Calculation of total long-term capital gain. First, long-term capital gain of house property minus 8,25,000 rupees. Second, long-term capital gain of shares 3,27,000 rupees. Net long-term capital gain received minus 4,98,000 rupees. अब जिसमें थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ज्वेलरी ₹7,70,000. ये सारा कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद वी हैव अ टोटल नेट टैक्सेबल कैपिटल गेन ₹2,72,000 रिसीव्ड. यानी श्रीमीत को लास्ट में नेट 2,72,000 रुपीज गेन के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करना होगा. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.